حیا کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ جو لڑکی حیا والی ہے، بڑا شائع ہے، بڑی ماڈسٹ ہے اور ذرا حیا دکھاتی ہے مردوں کے سامنے، وہ تو ایل کانفیڈنٹ ہے، وہ تو انسکسیسفل ہے اور اس کو تو رشتے بھی نہیں ملیں گے۔ آج کل تو رشتے بھی نہیں اس طرح سے ملتے جی، وہ کیسے کامیاب ہو؟ تو یہاں پہ تو خاص اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی تذکرہ ہے، پتہ آپ کو حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ بچیاں آگے چل رہی تھی، وہ خواتین آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے، صحیح بخاری کی غالباً حدیث۔ ہوا کا جھونکا آیا، ان میں سے ایک جو تھی ان کا سکرٹ تھوڑا سا اوپر ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ سائٹ برداشت نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے آگے چلوں، ان کو بتائے بغیر کہ معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نہ ابھی نبی بنے، نہ ان پہ وحی آئی ہے، لیکن وہ فطرت میں ہے، حیا فطرت میں ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو قرآن و حدیث نہیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا، یہ تو فطرت میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اپنے ہی اندر ہم نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہوئی ہے۔ یہ تو نان مسلم کی حیا والے تھے۔ آج سے 100 سال پہلے آپ کچھ ویڈیوز دیکھیے، 80-90 سال پہلے کی ویڈیوز بلیک اینڈ وائٹ میں، نیو یارک کی، لندن کی، آپ ان کے ڈریسز دیکھیے، لانگ سکرٹس ہوتے تھے اور سر پر حجاب ہوتا تھا، اور اب دیکھیے وہ کہاں پر، اللہ معاف کرے، کتنا انہیں ڈسیو کر دیا گیا۔ آج کی عورت کو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت ڈسیو کر دیا گیا، بہت ڈسیو کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایٹریبیوٹ بیان کرتے ہیں وہ حیا ہے، اور حیا انسان کی نیچر میں، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی وحی نہیں آئی، نبی نہیں بنے، لیکن اتنی غیرت ہے، اتنی حیا ہے کہ ان سے یہ سائٹ نہیں برداشت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ان کے ابا کے پاس، شعیب علیہ السلام، مدین میں، اس پر خیر آج کل ہسٹورینز کا اختلاف ہے کہ یہ مدین تھا کہاں۔ پرانے اسکالرز کے نزدیک ایجپٹ میں ہی تھا، لیکن جو نئی ایک ریسرچ آئی ہے، یہ آپ خود بھی کر لیجئے گا ریسرچ، آج کے کچھ اسکالرز اور ہسٹورینز کلیم کرتے ہیں وہ سعودی عرب میں، اور بلکہ ماؤنٹ سینائی، ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ وہ تبوک جہاں ہے وہاں پر ماؤنٹ سینائی ہے۔ اینی وے یہ ایک اختلافی معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، تو شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے ہی کہا، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابا جی انہوں نے ہماری مدد کی ہے، اور بے شک یہ شخص قوی ہے، امین ہے۔ یہ میسکولینٹی کے دو ایٹریبیوٹس یہاں پر اللہ نے بتائے۔ دیکھیں آج کل میسکولینٹی کی بہت بات ہوتی ہے، مردانگی کی، اصل مرد کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے دو ایٹریبیوٹس، نمبر 1 قوی، اسٹرانگ ہے، جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہے، اور نمبر 2 امین ہے۔ امین امانت کو پوری کرنا، ٹرسٹ وردی، یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے۔ مرد کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے، مرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور اس پہ اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے۔ تو یہ دو کوالٹیز بیان ہیں۔ تو شعیب السلام بہت خوش ہوئے اور شعیب السلام نے شکریہ بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ون آف مائی ڈاٹرز، میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، لیکن ایک شرط رکھی شعیب علیہ السلام نے، جس سے کچھ علماء نے پوائنٹ نکالا ہے گھر داماد کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ 8 سال اور اس سے ایکسٹرا 2 سال مجھے سرو کریں گے، آپ یہیں پر رہیں گے، اگر آپ کوئی کنڈیشن منظور ہے تو انشاءاللہ لیٹس پروسیڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا۔ یعنی ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے نکاح کے وقت، میوچل ایگریمنٹ، میوچل آپس میں ڈسکشن کر کے، جس میں دونوں پارٹیز کا کوئی فائدہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد واقعہ آگے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے، اور یہ کئی سال بعد کی پھر بات ہے، بچے بھی تھے ان کی وائف بھی تھی ساتھ۔ تو راستے میں وہ جا رہے تھے اپنے قوم کی طرف واپس، مصر واپس جا رہے تھے، اپنے ظاہر ہے بہن بھائیوں سے ملنے، ان کو یاد ستا رہی تھی اپنی قوم کی۔ تو راستے میں ماؤنٹ طور سے جو ہے وہ انہیں آگ ایک دکھائی، وہاں پر وہ تشریف لے گئے، فیملی کو کہا کہ میں کچھ آگ کا انتظام کرنے جاتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں،
और मैंने आपको चूज कर लिया अपने लिए। बहुत खूबसूरत अल्फाज है, मैंने आपको अपने लिए चूज कर लिया। गो टू फिरौन, फिरौन की तरफ जाए। बेशक उसने बड़ा जुल्म किया, बेशक वो हदें पार कर गया है। और फिर मूसा इस्लाम की पूरी ट्रेनिंग भी यहाँ पर अल्लाह ताला ने मोज़ात दिए। असा दिया, असा को कहा जमीन पर फेंकी, वो एक अज़हा बन गया, बहुत बड़ा अज़हा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अल्लाह ताला का डरो नहीं पकड़ लो। बहुत खूबसूरत अल्फाज साबित हुआ। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अल्लाह ताला डर खत्म कर रहे हैं कि मूसा आप मुझ पे आप इतना ट्रस्ट करो। अब आप मुझे रब मान रहे हो ना, तो मुझे आपसे इतना ट्रस्ट चाहिए कि अपने डर को फेस करो, अपना करेज बाहर लाओ। साबित हुआ करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। बहुत से लोग करेज को समझते हैं एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द एबिलिटी टू फेस फियर। करेज अपने फियर को फेस करने का नाम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो अज़हा फेस करवाया। कभी कभी इंसान को अपने फियर्स को फेस करना पड़ता है, और यही कामयाबी है। अगर आप भागते रहेंगे अपने फियर से, भागते रहेंगे, शायद वो या ना मामला हो जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आने को है, वो समझता है कि बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन बाद में हादसा हो जाता है। तो हमें ये भी दर्स मिलता है कि ट्रस्ट अल्लाह। अगर कोई मुश्किल आई है, बावजूद इसके यू ट्राइड योर बेस्ट। देखिए, आपने एक बेस्ट डिसीजन लिया, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की, उसके बावजूद कोई मुश्किल आ गई है, तो अब आंखें ना बंद करें, फेस दैट मुश्किल, उस फियर को फेस करें। और किस लिए फेस करें? कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या मूसा साहब को अल्लाह ने अकेला छोड़ दिया था, फिरौन के पास भेज दिया? इससे मुझे एक वाक़या याद आया। एक यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स हमारे पास आए, कहा कि हमने इस्लामिक सोसाइटी बनानी है अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारा जो है DSA है, डीन स्टूडेंट अफेयर, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो बड़ा जल्लाद है और इस्लाम पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें डर लग रहा है हम उनके सामने बात करेंगे, प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो सुभान अल्लाह, मैंने किस्सा उन्हें रिवाइज कराया कि यार क्या हो गया, अल्लाह ताला फिरौन की तरफ भेज रहा मूसा इस्लाम को कि जाओ जाकर बात करो, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ये पढ़कर जाए मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जाके प्रपोजल प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करें। अल्लाह ताला तो फिरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम भेज रहा, आपका DSA फिरौन तो नहीं है ना, मुसलमान ही है, चलो ठीक है, इस्लाम पसंद नहीं होगा, है तो मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह वो गए, अप्रूव हो गया मामला, ये दुआ पढ़ कर गए, अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, हिकमत के साथ प्रेजेंट किया प्रपोजल। तो मूसा इस्लाम की लीडरशिप ट्रेनिंग अल्लाह ने की कि मूसा, फर्स्ट यू नीड टू फेस योर फियर्स। आप एक काम करने जा रहे हैं, देखें अगर आपने सही मर्द बनना है ना, तो फियर को फेस करना सीखें। अल्लाह ताला की मदद आएगी, जरूर आएगी। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, अपनी मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी क्या है? रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़िएगा। रेजिलियंस, अज़म कहते हैं, उलुल अज़्म, अल्लाह ने तारीफ की है अज़म वालों की। अज़म एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस। इसको कभी आप AI के थ्रू पढ़िएगा, व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी ये है कि वो मुश्किल से भागते नहीं है, वो मुश्किल को फेस करते हैं। मुश्किल है, आई नो, कहना आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बट वो फेस करके उसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशन ट्राई करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई सोल्यूशन उन्हें नजर आ जाता है। और जो नॉन रेजिलियंट लोग होते हैं मुश्किल से भाग जाते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए थे, वो तो मुश्किल ही ऐसी थी ना, वो तो फियर ही ऐसा था, वो एक अलग बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि फेस योर फियर, और उसके बाद ये तसल्ली दी कि मूसा जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, तुम दो हो, जाओ जाकर उससे बात करो, और नरमी से बात करना, क्या पता मान ले। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। फिर और के बारे में अल्लाह कह रहा है नरमी से बात करना, हालांकि अल्लाह को कंफर्म पता है वो बात नहीं मानेगा। साबित हुआ डिफिकल्ट लोगों के साथ नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से डिफिकल्ट होंगे तो वो डबल डिफिकल्ट होंगे। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से बहस करेंगे, वो 10 टाइम और बहस करेंगे आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिरौन के पास गए और ये दुआ पढ़ कर गए, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह,
میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، اے اللہ میرا کام آسان فرما دیجئے، مجھے شرح صدر دے دیجئے، مجھے کلیرٹی دے دیجئے۔ کیا کیا مانگا؟ کلیرٹی، زبان کی گرہ کھولنا، اور تیسری چیز میرا کام آسان کر دے، چوتھی چیز وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اے اللہ مجھے ایک وزیر دے دے، ایک ساتھی دے دے، ہارون اخی، یہ بھی کہہ دیا ہارون دے دے، بالکل نہیں شرمائے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، اتنا اسپیسیفک ہو گئے۔ اور اللہ ایسا ذکر ہماری زبان پہ جاری کر دے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور پھر سٹوری آپ کو پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور کس طرح فرعون کی کمر توڑی ہوئی، آرمی سے شکست نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام نے پراپر سیاست کی ہے۔ یہ ہے سیاست، ڈیبیٹ میں شکست دی، پی آر میں شکست دی، ٹھیک ہے، فرعون کی پی آر توڑی، فرعون کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا، پبلک کو اپنی طرف کیا۔ دس از سیاست، دس از پولیٹکس۔ تو پورے اس واقعے میں سیاست بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور مدد کس کی؟ اللہ کی۔ اور اتنی بڑی اس کی شکست ہو گئی کہ اس کے اپنے جادوگر وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ واقعہ سبحان اللہ کئی سورج میں ہے، سورہ الاعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ سواد میں ہے، سورہ قصص میں ہے۔ سورہ قصص میں اس کا ایک اور رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ والا فیز ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ فیوجیٹو بن گئے، بندہ قتل ہو گیا، بھاگ گئے، ایک کرمنل بن گئے، اور کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا، کیا انسرٹنٹی تھی، لیکن پھر کس طرح اللہ نے انہیں مشن دیا، کس طرح اللہ نے ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کی، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگی جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ سے زندگی میں یہ چیزیں مانگا کریں، کلیرٹی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے کلیرٹی دے دے تاکہ میں اچھے ڈیسیجنز لوں لائف میں۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ برے ڈیسیجنز لے کر۔ اللہ سے مانگو، اے اللہ تو الرشید ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رشید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رستہ دکھانے والا، کلیرٹی دینے والا ہے۔ اے اللہ میرا شرح صدر کر دے تاکہ میں زندگی میں غلط فیصلے نہ کروں، میں صحیح فیصلے کروں، مجھے صحیح فیصلے کرنے والا بنا، اور استخارہ بھی کیجیے۔ تو اللہ سے انہوں نے یہ مانگا، پھر زبان کی روانگی مانگی، پھر آپ دیکھیں پیسہ نہیں مانگا، ٹیم مانگی، نیک ساتھی، نیک وزیر مانگا۔ سب سے بڑی نعمت ایک نیک ساتھی ہوتا ہے، ایک نیک ٹیم ہوتی ہے، اور یہ بات دعویٰ کے کام میں ہمیں احساس ہوا۔ پیسہ اللہ دے دیتا ہے، ریسورسز اللہ دے دیتا ہے، اصل میں ٹیم میٹر کرتی ہے، اصل میں نیک لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو اللہ سے ایسی اولاد کی بات کہ اللہ میرے مشن کو آگے لے جانے والی اولاد، میری لیگیسی کو آگے لے جانے والی اولاد، ایسی اولاد عطا کر، اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر جو مجھے سمجھے، میں اسے سمجھوں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، وہ بھی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر بات کو ختم کریں گے۔ قارون کا تذکرہ بھی سورہ کے اینڈ میں۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا، اور اتنے خزانوں، دروازے اتنے بڑے ہو گئے، جو چابیاں تھیں کہ وہ چابیوں کو اٹھا کر لوگ لایا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایروگنس اس لیول کی آ گئی، اور بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ یہ تھا، وہ آیا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ لوگ جب اس کا خزانہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینٹنس لوگوں کا کوٹ کیا۔ اللہ کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بہت دنیا پرست تھے، جو بہت مٹیریلسٹک تھے، جو بہت زیادہ دنیا کو چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ انہوں نے کیا کہا کہ اوہ کاش جو قارون کو دیا گیا ہے یہ ہمیں بھی دیا جاتا، بے شک یہ تو بہت کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آج کے بلاگرز قارون ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنی حرکتیں درست کریں، لیکن آج ہم کسی بلاگر کو جو فارچونر گاڑی اپنی دکھاتا ہے،
दुनिया फ्लॉन्ट करता है। आज हम ये ख्वाहिश नहीं करते, यार कितना सक्सेसफुल है, काश हमारे पास भी ये हो। ये तो वही सेंटेंस है जो लोग कारून को देखकर कहा करते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अगली आया क्या है कि जब लोगों ने उसे जमीन में धंसते देखा, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अज़ाब से। जब लोगों ने उसे जमीन में हंसते देखा तो क्या कहा, हाय अच्छा हुआ कि हम इसकी तरह नहीं बने। ये सेंटेंस है उनका, अच्छा हुआ हम इसकी तरह नहीं बने। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से कि ज़मीन हमें स्वालो करे। यानी उन्होंने इबरत पकड़ी, वो समझ गए, अक्लमंद थे, दुनियादार थे लेकिन अक्लमंद थे, समझ गए। तो कारून का एक जुमला जो यहाँ पर स्पेशली अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो मैं आप सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। कारून ने ये गलती की, उसने कहा क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मेरा इल्म है, मेरा कमाल। उसमें किबर था, तकब्बुर किया। उसे क्या कहा, मैं सेल्फ मेड हूँ, ये सब मेरा है, खुदा का कोई कमाल नहीं, दिस इज माई नॉलेज, मैं ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया। कभी कभी हमसे भी अल्लाह माफ करे गलती हो जाती है कि हम कहते हैं हम भी सेल्फ मेड हैं। देखें, आई अंडरस्टैंड हम ये किस नीयत से कहते हैं, किस उस बैकग्राउंड से, लेकिन नहीं कहना चाहिए। जुमलों का पर्सनैलिटी में बड़ा असर होता है। इससे पिछली सूरा में कमाल की बात यह, सूरह नमल में किसका तज़किरा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम। इंटरेस्टिंगली उनका भी एक जुमला है, उन्होंने जब भी वो कोई नेमत देखते थे अल्लाह की, क्या कहते थे, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। आजकल ये घरों पे लिखा होता है ना, ये सुलेमान सलाम का जुमला है। साबित हुआ दो रवैये हैं, एक तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है, एक सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस नबियों का था, नबी बहुत कॉन्फिडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर पे पहुंचे, बनी इसराइल बड़ी, आपको पता है, एक शरारती भी और बड़ी ढीठ कौम थी और बड़ी टफ टाइम देने वाली कौम थी। उन्होंने ताना दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, कहते अब क्या मूसा, अब तो समंदर आ गया, तू तो हमें मरवाने ले आया, तू तो अच्छा था वहीं रहते, ये ताना दिया, तू तो हमें मरवाने ले आया। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, कोई नहीं मेरे पास असा है, फिक्र ना करो, कोई नहीं मेरे पास मौइज़ा है। क्या कहा, बेशक मेरा रब मुझे गाइड करेगा। वही यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, नाउज़ बिल्लाह, वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो, असा है, असा अभी मैं आगे करता हूँ, ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ बीवेयर। सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत है, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यकीन करें, अगर ये हमारा रवैया बन जाए, फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है। क्योंकि जो इंसान इतना शोखा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज़ रहना चाहिए। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखिए, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूँगा और देता रहूँगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज़। तो कारून ने जो गलती की, उसने कहा ये मेरे इल्म का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है, और फिर अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया। तो कारून रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस सूरा में 3 लोगों का जिक्र है, फिरौन, हामान का भी शुरू में जिक्र है, और तीसरा कारून। अगर आप गौर करें, फिरौन रिप्रेजेंट्स सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ल्ड व्यू, हामान रिप्रेजेंट्स द सेकुलर मीडिया। हामान आपको पता है कौन था, स्ट्रेटेजी मेकर था फिरौन का, मशवरे उसे हामान दिया करता था, उसकी प्रमोशन हामान करता था। हामान, आज का हामान जो है ये करंट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, जो एथिज्म को प्रमोट करता है, फॉल्स वैल्यूज को, दज्जालियत को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के सामने जो है ना वो इस्लाम को डिग्रेड करते हैं और सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो बिवेयर ऑफ हामान, ये पूरा एक ट्रायंगल है, फिरौन, हामान और कारून। कारून क्या है, कैपिटलिज्म।
कैपिटलिस्ट सोच, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज प्रॉफिट लॉस में देखना, दैट इज कारून। तो अल्लाह ने तीनों का एंटीडोट इस सूरा में बता दिया, फिरौन का भी, हमान का भी, कारून का भी। बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इस्लाम वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, लीडरशिप आपको ही मिलेगी। मूसा को ही मिली थी लीडरशिप। तो ये खूबसूरत लेसन हमें मिलते हैं। जस्ट टू वाइंड अप, 10 खूबसूरत लेसन मैं आपके सामने रखता हूँ, पावरफुल लेसन इस सूरत से। नंबर 1, अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना। दिस इज तौहीद। अल्लाह का प्लान ही गालिब आएगा। अगर मूसा इस्लाम को फिरौन के महल में अल्लाह ले जा सकता है, जहां पर इतना सख्त पहरा है, जो मारना चाह रहा था मूसा को, तो फिर आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कुछ भी करवा सकता है। पहला लेसन। दूसरा, कभी कभी तवक्कुल एक बहुत रिस्की काम लेना दरकार करता है आपसे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम किया। कभी कभी अल्लाह ये तवक्कुल आपसे मांग रहा होता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तीसरा, अल्लाह ताला दिलों को कंट्रोल करता है और कोई नहीं। देखें, फिरौन के दिल में मोहब्बत भर दी अल्लाह ने मूसा की, क्या साबित हुआ? अल्लाह दिलों को कंट्रोल। फिरौन जो मार रहा था लड़कों को, वो मूसा से मोहब्बत करने लगे, मूसा मोहब्बत करने लगा। मूसा इस्लाम ने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से। वो वाकया खैर आता है, कोयला मुंह में लेते हुए ऐसा दिल नरम किया फिरौन। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है, उससे बेहतर भी दे देगा। अगर वो ना दी, उससे बेहतर दे देगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए, उससे बेहतर हालत में, जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के पास रिटर्न हुए। अल्लाह विल गिव यू व्हाट यू हैव लॉस्ट। वन मिस्टेक डज नॉट डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी। बहुत बड़ा लेसन है यूथ के लिए। आजकल हमारे नौजवान बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। बिजनेस नहीं चला, डिप्रेस। खुदा ना खास्ता शादी नहीं चली, आजकल डिवोर्स बहुत हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खुदा ना खास्ता शादी नहीं चली, बस खत्म। सच्चा प्यार नहीं मिला, बस खत्म, जिंदगी खत्म। ठीक है, कोई और चीज नहीं मिली, जिंदगी खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम यानी बंदा कत्ल हो गया, जंगल में भाग गए, सब कुछ चला गया, फिर स्टार्ट कर दिया। तो वन मिस्टेक कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। याद रखें, अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बहार ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। नंबर 6, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सिन शुड बी रिपेंटेंस। पहला रिस्पॉन्स गुनाह पे तौबा होनी चाहिए, पहला रिस्पॉन्स। इन लोगों की अल्लाह तारीफ करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग? जन्नत के वारिस। अजीब बात है, जन्नत में गुनाहगार जाएंगे, कितनी होप की बात है। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं, कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं फौरन, जब होश में आते हैं। जाहिर है, जब बंदा गुनाह की हालत में होता है, होश खोए हुए होता है ना, जज्बात हावी हो जाते हैं। लेकिन जैसे होश आता है, कहते हैं या अल्लाह ये मुझसे क्या होगा, हाय अल्लाह, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। ये है सही रवैया। ऐसे इंसान को अल्लाह माफ भी करेगा, वापस भी लाएगा, इंशाल्लाह गुनाह से भी बचाएगा। और मूसा इस्लाम का यही रवैया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िर ली। या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, डर रहे थे, या अल्लाह आप निकाल बचा ले, माफ कर दे, खसारे वाला ना हो जाओ। नंबर 7, कभी कभी अल्लाह ताला आपको अकेले में ले जाता है, अकेले में ट्रेनिंग करता है, घबराए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलोन कर दिया। जो पर्सपेक्टिव मूसा अलैहिस्सलाम को वहां मिला होगा ना, वो कभी भी महल में नहीं मिल सकता। कभी कभी अल्लाह आपको बिजनेस में लॉस करा के वो पर्सपेक्टिव देगा जो आप बिजनेस में सक्सेस से नहीं सीख सकते। कभी कभी अल्लाह ताला आपको अलहदा करके, आइसोलेट करके वो पर्सपेक्टिव देगा जो शायद आपको कामयाबी में नहीं मिल सकता। ट्रस्ट अल्लाह,
ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुश्किल है, ट्रस्ट द प्रोसेस, अल्लाह की टाइमिंग को ट्रस्ट करें, लर्न करें। वो चीज़ सिखा क्या रही है, लर्न करें। व्हाट एम आई लर्निंग? कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल सबसे खूबसूरत दिल वो होता है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत अमेजिंग होता है। तो अल्लाह ताला कभी कभी लोनलीनेस में इंसान को प्रिपेयर करता है और फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जब टाइम उसको, जब वो उस काबिल होता है कि उसे चीज़ मिलनी चाहिए, फिर सेफ्टी भी देता है, मैरिज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, मिशन भी देता है। और नंबर 8, हेल्प पीपल इवन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। बहुत खूबसूरत लेसन। देखिए, लोगों की मदद करें जब आप मुश्किल में। ये तो सूरह ज़ुहा का सलूशन है। अल्लाह के नबी को अल्लाह एंड में क्या कहते हैं सूरह ज़ुहा में? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर। ए नबी, इसलिए यतीम की मदद कीजिए, साइल को दुत्कारिए ना। यकीन करें, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं ना, उस मुश्किल के लोगों के लिए दुआ करने लगे। अगर आपको औलाद नहीं है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बे औलाद हैं सबको औलाद दे। आप देखें, अल्लाह ताला कबूल करें। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, वही बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं, उन्हीं बीमारी के लोगों की मदद करें, उनको चैरिटी दें, उनका इलाज करवाएं। अगर आप, अल्लाह ने आपको माल दिया, आप देखें अल्लाह आपको कैसे सेहत देता है। ये साबित हो रहा है मूसा इस्लाम के वाक़े से कि उन्होंने मुश्किल में उन बच्चियों की मदद की और अल्लाह ताला ने उस वसीले को कबूल किया। और देखिए अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की। नंबर 9, द मोस्ट सिंसियर दुआज आर ऑफन द सिंपलेस्ट। सबसे सिंसियर दुआ अमूमी तौर पे वो होती है जो सबसे सिंपल होती है। आप हज़ारों दुआएं कर लें, लेकिन अगर यहाँ से नहीं है ना, अगर उसमें वो तलब नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो वो दुआएं हवा में जा रही है, वो बेमायनी है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि यहाँ से ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं अल्लाह इन्नका गफूरुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, लेकिन अंदर से वो तड़प ही नहीं है कि अल्लाह मुझे वाकई माफ़ कर दे, मैं वाकई माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझसे खता हुई, तो फिर वो हवा में जा रही है। तो सबसे बेहतरीन दुआ जो यहाँ से निकलती है, सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स है। और नंबर 9, 10 और आखिरी, वेल्थ एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। माल दिया है तो उस पर इतराए ना, माल दिया है उसको खर्च करें। और फिरौन कारून वाले जुमले से बचें, ये सब मेरा कमाल है। आजकल हम देखते हैं कुछ व्लॉगर्स को, वेस्ट में जाते हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, डॉलर्स को यूँ लहरा के ना वीडियो बना रहे, कह रहे हाँ भाई पुप्पी फिर कुड़ी नहीं देती सी ना मैनू, है वे $1 कमा रहे। अपने चचा को जला रहे हैं, अपनी फुप्पो को जला रहे हैं, रिश्तेदारों को टॉन्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? एरोगेंस, नए दौलती। असल तो ये है कि जिसने जुल्म किया था आपके साथ, जिसने ज्यादती की थी, उसको दें। असल तो सिला रहमी और क्या है? सिला रहमी ये तो नहीं है कि जो अच्छे थे उनसे मिलो, सिला रहमी तो ये है जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया था बचपन में, उनको जाकर मिलो, उनको कुछ दो, गिफ्ट दो जाके, ये सिला रहमी होती है। और सबसे क्विक रिस्क मिलता है सिला रहमी वाले को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इंसान सिला रहमी करता है उसको अल्लाह बहुत जल्दी दुनिया में रिवॉर्ड देता है, और अल्लाह ताला उसके माल में, रिस्क में, और अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, कारून का जो रवैया था वो था इतराना माल पर, और इसका ऑपोजिट रवैया हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। तो खर्चने वाले बने और अल्लाह ताला और सिला रहमी करने वाले बने, अपने रिश्तेदारों पे खर्चा करने वाले बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।